you know, you have to look for the auscultatory areas. There are traditionally there are the four auscultatory areas. Okay, what are they? They are the mitral area, tracheal area, pulmonary area, and aortic area. Okay? And we must be knowing about the localization of these areas. Where the mitral area lies, it lies in the apex, in the fifth intercostal space, right at the midfield line. It is the apical area or mitral area simply. And the tricuspid area lies on the left side of the sternum, left parasternal area, in the fourth intercostal space, it parasternal area. मतलब parasternal बिल्कुल parasternal पे fourth जिसको हम कहते हैं tricuspid area. Pulmonary areas lies in the second and third intercostal space on the left side, while aortic lies on the right side in the second intercostal space. And for convenient purposes, the A2 area further divided into A1 area and A2 area. Aortic area is further divided into aortic 1 and aortic 2. Where is aortic 1? Aortic 1 area is located on the second right intercostal space, while the third second aortic area is located in the second intercostal space or third is intercostal space on the left side. वो लेफ्ट साइड होगा, ठीक है. So aortic area further दो हिस्सों में, aortic 1 and aortic 2, aortic 1 on the right second intercostal space and aortic 2 on the left second to third intercostal space. ये aortic 2 होता है. इनकी दोनों की इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें मर्मर डिफरेंस नहीं है. एआर का मर्मर सेकंड पे, एएस का मर्मर थर्ड. A2 area, ठीक है. So you have to put an state over the 3-4 respective areas in order to understand the pathology. You need to check each area separately. Okay, then you will be able to define the characteristics of the lesion if it's present. Okay, so so then we have to define then what is the concept of the dynamic oscillation? What is the dynamic oscillations? You must have learned about the dynamic oscillations, or you will be learning in future classes. The dynamic oscillations, you need to you oscillate the patient in all areas depending upon the type of the limb pressure. You must oscillate the patient in the in supine position, lying down in the bed, lying down in the couch. You must oscillate area. Then in the left lateral position, okay. Then ask the patient to stand up, sit in the couch, and lean forward, and you oscillate. And sometime in certain cases, in certain pathological states like hypertrophic or obstructive cardiomyopathy, like mitral valve prolapse, okay. Like some cases of aortic stenosis where you are not able to differentiate whether either AS murmur or hypertrophic cardiomyopathy murmur, then you may ask the patient to come down off the bed and stand up and sit down and again stand up. These are the certain manuals. That is the whole cycle is called dynamic oscillations. You did oscillation in supine, left lateral, sitting position, and asking the patient to come down, sit down, and stand up and check for the murmur. Accentuation of the murmur, whether it happens with the sitting down, whether it happens with the standing up. That's the different conditions we have been learning in the physics classes where it's applicable, right? And one thing I would like to add, once you start oscillations, you need to check the carotid pulsation with your hand in order to delineate, because you are in the beginning phase, right? You need to establish the relationship whether the murmur comes with the S2 sound or systole, or it follows the systole. If it follows the systole, then it's more probably diastolic murmur. If it comes with the systole and you prepare the carotid artery and pulsation is felt and murmur is hard, then it's the systolic murmur. Okay, every murmur they come with the pulsation is the systolic murmur. Then follow the pulsation is the diastolic murmur. So because you have it in the beginning phase, you need to check the carotid pulses simultaneously when you oscillate the precardium. Okay, so I will be starting with certain one thing more. Another you ask the patients to take deep breath, inspire in and expire out. Okay, because you might have studied right-sided the murmurs, right-sided pathology associated with the inspirations, because there is a rise in the right-sided cardiac output. If the murmur of the TR is present and you ask the patient to inspire, right, and there is accentuation of the TR murmur, right, and if you ask the patient to expire out, लंबा सांस निकाल के बाहर निकालें, लेके बाहर निकालें. If you ask the patient to exhale forcefully to expire it out, then and you try to accelerate the murmur, any murmur that accentuated with expiration is the left-sided murmur. ठीक है? तो हर oscillation के स्टेप में आपने मरीज को ये कमांड देनी है कि सांस ले लंबा, try to accelerate out, try to figure it out, बाहर निकालें, then try to figure it out, and then compare the two steps simultaneously कि कहाँ पे आपका मर्मर जो है
एक्सेंचुएट कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है तो आपको समझ आता है कि लेफ्ट साइड होता है, एमआर का हो सकता है, एआर का हो सकता है, ठीक है, एएस का हो सकता है, लेफ्ट साइड पे जितने सारे लीजन्स हैं वो हो सकते हैं। अगर राइट से वो इस डायरेक्शन के साथ एक्सेंचुएट कर रहा है तो आप समझिए इस अदर राइट साइड इट मे बी टीआर मर्मर, इट मे बी द पीआर मर्मर और पीएस मर्मर, जो इस डायरेक्शन के साथ कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर सो फार? Yes. Okay, so as well as me, hold on. Okay, so I'm holding it straight in my hand and putting my thumb over the carotid artery, but be gentle. Don't press two carotids simultaneously. Okay, just you put thumb of your hand on the carotid and just you feel the pulsations, right? And start with doing from the apical area. You may start from anywhere, but routinely it's done from the apical area. Okay, so I will try to figure it out first how sounds S1 and S2. Then we'll try to figure out if any murmur present, and I will command the patients to inspire and expire. सांस लीजिए, लंबा सांस लें, बाहर निकालें, लंबा सांस लें, बाहर रोकें, ठीक है, ओके। देन टास्क एरिया, लंबा सांस लीजिए, रोकें, लंबा सांस लेके रोकें, बाहर निकालें, ठीक है, थैंक यू। लंबा सांस लीजिए, रोकें, बाहर निकालें, लंबा सांस लीजिए, बाहर निकालें, जोर से रोकें, ठीक है, थैंक यू। लंबा सांस लीजिए, बाहर निकालें, रोकें, थैंक यू, ठीक है, ओके। तो 4 बेसिक एरिया हमने कर लिए। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो, अगर कोई मर्मर है ना तो उसकी रेडिएशन को आपने चेक आउट करना है। अगर आपको एपिकल एरिया पे सिस्टम मर्मर मिला रहा है तो मोर लाइकली क्या हो सकता है, माइटल रिगर्जिटेशन हो सकता है। तो वेयर इट रेडिएट्स मोस्टली इनटू द एक्सिला। इफ यू फाउंड द मर्मर ऑन एस्केलेशन ऑफ द apex, it seems to be the MR you think is the MR, then you must check out the radiation of the MR into the axilla. अगर नहीं है तो फिर जरूरत नहीं ड्रामे करने की। अगर है सॉरी अगर है तो फिर आपने उसका रेडिएशन देखना है एक्सिला में, यहाँ पे, ठीक है। That may help you in differentiating the AS murmur and MR murmur, because AS murmur may be heard at the apical area. It's called Gala-Verdin phenomena. AS murmur you may hear at the apical area. That's called Gala-Verdin phenomena, and you sometimes you feel difficult in order to differentiate between whether the AS murmur or is a MR murmur. Then you need to check for the radiations. The MR murmur is present, then it radiates into the axilla. वो वहाँ पे आपने चेक कर लिया, ठीक है। और सारी और नीचे आपने ट्राई कर देख लिया, माइटल देखिए ऊपर, ठीक है। एंड सेम हैपेंस विद द एएस मर्मर। इफ यू आर एबल टू एस्केलेट द एएस मर्मर, देन यू लुक चेक फॉर द रेडिएशन। यस, रेडिएशन इनटू द कैरोटिड्स। अगर आपको आ रहा है तो फिर आपने कैरोटिड में जाके आपने करना है कि रेडिएशन जा रही नहीं जा रही। ये एमआरसीपी मैंने नहीं किया था, एग्जामिनर अंग्रेज था, उसने पूछा था कि व्हाई डिडंट यू चेक द रेडिएशन ऑफ द एएस इनटू द नेक। दैट्स इंपॉर्टेंट मैनुअल। रेडिएशन यू मस्ट चेक इट आउट। एक्सिला, एमआर, नेक, एआर्टिक स्टेनोसिस, दोनों को मिमिक करते हैं ना मर्मर। देखो मर्मर तो कहीं पे भी आ सकता है ना। एएस का मर्मर आपको एपेक्स पे सुनाई देता है, ठीक है। एपेक्स का मर्मर आपको पेरिकार्डियम के अक्रॉस आ रहा होता है, तो आपको पता लगा होता है कि मर्मर कौन सा है, कहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी है, ठीक है। तो आफ्टर यू आर डन, एक ही गो में एक ही चीज़ करते जाएं। ये नहीं कि आपने मरीज को उठा के बिठाया, फिर लिटा दिया, फिर लेटर कर दिया, फिर उठा के बिठाया। नो, डोंट डू दिस। बी जेंटल विद द पेशेंट्स। First, you complete the scheme on the lying down. Then ask the patient to take the left lateral position and complete the scheme, and then ask the patients to sit up in the couch and do the examination, rest of the examinations. You may not be allowed to do the repeated examinations. Like the patient is lying down and you ask the patient to sit down. Again, you ask the patient to lie down. Again, you ask the patient to sit down. There's going to be the negative marking examinations. There's not giving good impressions, right? Okay, so ये हमने कर लिया। और देन वी विल आस्क द पेशेंट्स टू लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हो जाए। बाबा पल्ली तरफ कर लीजिए। अच्छा, बाबा का वैसे नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस, डोंट डू दिस। बाबा या चाचा एग्जामिनेशन में या पेशेंट के जब आप मुखातिब हो तो इस तरह वर्ड जो है इसके नेगेटिव इंप्रेशंस होते हैं। बाबा, चाचा। अगर आपको नाम आ रहा है मरीज़ का, जमाल साहब, आप पल्ली तरफ ले लें, ठीक है ना, या आप पल्ली तरफ साइड ले लें। अगर आपको नाम भी दिमाग में नहीं खिसक गया, पता नहीं चल रहा, तो आप उनको ऐसे ही बता थोड़ा सा कि आप थोड़ा पल्ली तरफ ले लें, आप उठ जाएं, आप बैठ जाएं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपने फिर क्या करना। अब लेफ्ट लेटरल में हम क्यों करते हैं? लेफ्ट लेटरल ओनली फॉर एमएस मर्मर। माइटल स्टेनोसिस मर्मर है, दैट इज एस्केलेटेड इन द लेफ्ट लेटरल एरिया। वो हमेशा आप याद रखें कि लेफ्ट लेटरल में करना होता है, लेफ्ट लेटरल में उसके लिए करते हैं।
और mitral MS murmur is best heard with the sharper bale of the stitch. This is diaphragm, this is the bale. The bale of the stitch, के साथ आपने MS murmur is base associated because the subtle murmur is a precise murmur. So it's best heard with the bale. Just you are supposed to hold the bale in your hand and just try to make it contact with the chest wall. Don't press it. If you are going to press the murmur bale or stitch, then the murmur is vanish away. It will be vanished away. Just you hold the bale and try to keep in contact with the chest wall, right? Like I'm doing. Okay. लंबा सांस लीजिए, बाहर निकालें. ओके ओके ठीक है. अपनी मुट्ठी बंद करें, जोर से बंद करें. ठीक है. ओके, थैंक यू. ओके तो इसमें हमने कहा पेशेंट को ये मैनुअल करवाया मुट्ठी के लिए भी कहा. मुट्ठी के लिए ज़्यादातर एमआर के लिए हम कहते हैं कि एमआर का मर्मर एसेंचुएट होता है. जब आप हैंड ग्रिप करवाते हैं पेशेंट से तो आफ्टर लोड बढ़ता है तो एमआर का मर्मर एसेंचुएट होता है. अब जब एमएस की क्वेरी हो ना, ये एडवांस लेवल की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एमएस की क्वेरी, एमएस आपको नहीं मर्मर नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन स्टिल योर डाउट द पेशेंट हैज़ द mitral stenosis, देन यू मे आस्क फॉर सर्टेन मैनुअल्स, अदर मैनुअल्स लाइक लेग रेसिंग के बारे में आप उनको बताते हो कि आप ही टांगे 10-20 दफ़ा ऊपर नीचे करें. बाबा ये टांगे ऊपर नीचे करो नहीं अपनी, वो करते जाओ, साथ करते जाओ. हाँ करते जाओ. ठीक है. तो लेग रेसिंग के साथ क्या होता है कि हार्ट रेट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा. देयर इज इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द ब्लड अक्रॉस द mitral vein. इफ द mitral vein is already stenosis and there is increased velocity of the blood against the mitral vein, the murmur will be accentuated. ये 10-20 दफ़ा इनकी लेग रेसिंग करवा के फिर उनको लेटरल में करके करवा लीजिए. तो आप आस्कलेट करते हो. अगर एमएस का मर्मर सटल होगा या हेडन होगा जो आपको पहले से नहीं हुआ सर, तो वो आपको एसेंचुएट हो जाएगा. वो आपको इजीली यू कैन पिक इट आउट. समझ आ गई? लेग रेसिंग इज डन फॉर द एमएस मर्मर व्हाइल द हैंड ग्रिप इज डन फॉर द एमआर मर्मर. एमआर का मर्मर अगर सटल है, यू आर स्टिल डाउटफुल, द हैंड ग्रिप के साथ ये क्या होता है कि आफ्टर लोड बढ़ता है, पेरिफेरल वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ेगी ना, तो आफ्टर लोड बढ़ेगा. हार्ट हैज़ मोर पम्प टू इजेक्ट द ब्लड. इट हैज़ मेक मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस. जैसे मोर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो फिर एमआर का मर्मर जो है वो एसेंचुएट हो जाता है और जाके उसके जो पिच होगी वो बढ़ जाएगा. यू विल बी एबल टू डिलीनिएट द मर्मर. अच्छा, उसके बाद आपने वंस यू कंप्लीटेड स्कीम ऑन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, देन यू मे आस्क द पेशेंट टू प्लीज सिट इन टू द काउच. आपने बाबा उठ के जमाल साहब आप उठ के बैठ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल. हाँ उठ के बैठे. ठीक है. ये नहीं है कि उठ के बैठ सकते हैं, आप ये कर सकते हैं. थोड़ा सा मतलब इसको हम क्या कहते हैं, रोकेस्टिंग एटीट्यूड. मतलब उठ के बैठो, बैठ जाओ, उठ जाओ. ठीक है ना. तो ये वाला रवैया है. आप यू मस्ट बी इन रोकेस्टिंग बिहेवियर. आपको जो बिहेवियर होना चाहिए पेशेंट के साथ, requesting respectable and gentle. You cannot force the patient to do anything. ठीक है. That's going to giving a very bad and rude impressions. Okay. So उनको उठा लेते हैं. ठीक है. आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही? ठीक है. आप करेंगे. तो सेम वे में आपने थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाए. ठीक है. लंबा सांस लीजिए. बड़ा लंबा सांस लें, बाहर निकालें, रोकें. लंबा सांस बाहर. ठीक है. लंबा सांस लीजिए, बाहर निकालें, रोकें. ठीक है. लंबा सांस बाहर निकालें, रोक दें. ठीक है. लंबा सांस लीजिए, बाहर निकालें, रोकें. ठीक है. अब देखो, अब इसमें आपने सारे स्किल को रिपीट करना है, लेकिन टाइम अपना बचाना है. आपको पता है कि मैंने जो उठा के बिठाया मरीज को मैं कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर मुझे कौन सा मर्मर इजीली इसमें सुनाई देगा, एएस का और एआर का मर्मर. लेकिन मैंने चारों को आइसोलेट करना है. तो isolation of the mitral area is not going to help in standing position because you are more concerned about AR and AS murmur. लेकिन आपने उसको भी करना है, लेकिन जल्दी करना है. ये नहीं कि उसके ऊपर आपने टाइम लगाना है. आप उनको रिपीट भी करें. सांस लें, लिया, बाहर निकालें, रोक दिया. आप क्लियर नहीं है, अगेन आस्क कि लंबा सांस लीजिए, रोके, आपने देख लिया, क्लियर हो गया. ठीक है, आगे चलें. ठीक है. डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम इंपॉर्टेंट है. आपको 5 मिनट्स होते हैं, 6 मिनट, तो आपने 6 मिनट में स्किम करनी होती है. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू बी फोकस कहाँ पे आपने टाइम लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है. जस्ट आपने स्टेप पूरा करना है. ठीक है. तो चूंकि एआर का मर्मर ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है,
स्टैंडिंग एंड सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड पोजीशन में ब्रेथ हेल्ड इन एक्सपायरेशन, तो ए आर का मरमर आप अच्छी तरह सुनो। इन द सेकंड सेकंड थर्ड एंड लेफ्ट एंड कॉन्सेंट्रेस ए का मरमर सुन लिया, देख लिया, रेडिएशन आ रही तो लेके देख लिया, अगर नहीं आ रही तो आपने नहीं देखा, कर लिया। ओके, सो ये जो है आपने इसको यहाँ पे कर लिया। अब हम मरीज को मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सर्टेन डिजीज स्टेज इन कार्डियोलॉजी लाइक हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, माइट्रल वेल प्रोलेप्स, ठीक है ना, या एआरटिक स्टेनोसिस। तो देन वी आस्क पेशेंट्स टू स्टेप डाउन ऑफ बेड and you stand up and we do the oscillations and ask patients to down for a few seconds and then stand up and see any discrepancy in the murmur, because in hypertrophic cardiomyopathy if the patients stand up from the sitting position, he has the accentuation of the murmur, and like that phenomenon is also seen in patient with mitral prolapse. So that's also part of the dynamic oscillations, वो जहाँ पे होती है। अगर नहीं है तो ना करो, अगर शक है एमआर का है, एमवीपी का है, और अपना हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है या स्पिल्टिंग का कोई फिक्स स्पिल्टिंग को आपने देखना है एसडी में, तो आप मरीज को फिर आपने नीचे उतार के बिठा के करना है आस्कलेशन, फिर उनको उठा के करना है। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द आस्कलेशन। और जब आपने मरीज को बिठा दिया है, आपने आस्कलेशन पूरे से कर ली, ठीक है, देन यू आर सपोज टू डू द रेलेवेंट एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर पार्ट। कि जैसे मरीज आपका बैठा है तो आपने बैक साइड को भी देख लेना, वहाँ को आपने चेस्ट को आस्कलेट कर लिया, सांस लें, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस लीजिए, ठीक है। तो आपने चेस्ट को भी कर लिया, ये नहीं कि चेस्ट के लिए दोबारा से उठाना पड़े। चेस्ट इज द पार्ट ऑफ रेलेवेंट पार्ट ऑफ द कार्डियक एग्जामिनेशन, यू नीड टू आस्कुलेट द चेस्ट, आस्कुलेशन और कुछ नहीं, आस्कुलेशन। फेल्यूर के पेशेंट होते हैं क्रेफ्ट सर्व मिलते हैं, बेसिस को आपने देख लिया और साथ में आपने सेकंड दिमाग को भी चेक किया। आपको कोई पीठ में दर्द तो नहीं है? नहीं सर, थोड़ा सा दबा के देखूंगा, ठीक है। यू हैव टू प्रेस फॉर द फ्यू सेकंड्स, 2 3 4 5 सेकंड्स एंड लुक फॉर द सेकंड एडिमा, ठीक है। तो ये आपने once you completed the front oscillation and back chest examination, then you may request the patients to lie down again in the bed, ठीक है, and do the rest of the manuals। आप लेट जाइए and pay thanks to you, आप लेट जाइए, ठीक है। आप missed even most senior persons who have been working cardiology, they missed auscultating the carotid berry. Okay, so you need to look for the carotid berry as well। बिरुई, जितने सारे सटल साउंड्स होते हैं, दे आर हर्ड विद द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। बिरुई मे बी द कैरेक्टर बिरुई मे बी द रीजनल बिरुई, ठीक है। तो यू हैव टू आस्कल्टेट विद द बेल, आपने बेल के साथ उसको सेलेक्ट करना है। ये बेल है तो आपने जस्ट कैरेक्टर सर इस तरफ रखिए, ओके। सो कैरेक्टर बिरुई आप आस्कलेशन के शुरू में करें या एंड में करें, लेकिन आपने आस्कलेट जरूर करना है। कैरोटिड ब्री एथेरोस्क्लेरोसिस में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डिजीज में, नेशनल कैरोटिड आर्टरी डिजीज में, जहाँ पे स्टेनोज होगी आर्टरी कैरोटिड आर्टरी, तो वहाँ पे आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो ये हमारा आस्कलेशन का जो पार्ट था वो हमने फिनिश कर लिया, ठीक है।